Okay, good evening, everybody. Myself, Praveen sir. I teach geography economics, and I'm there in my tutorials from past 12 years. I head the three centers of Borivali, that is Borivali Station, Sailila, Borivali Exer, and Borivali Saibaba Nagar. So, on behalf of Mahesh Tutorials, I would like to welcome you all. Today, we are not just a part of Mahesh Tutorials, that is MT Educare Limited. Now, MT Educare Limited is also managed and executed by ZLearn. So, this product, that is Mahesh Tutorials school section, is now a division of two parent companies. One is MT Educare, another is ZLearn. So today, basically, we are attending a session which is called as the self-analysis session. The entire session is broken into two parts, wherein the first part is a general understanding for parents, and second part is called as self-analysis. So let's begin with the very first part, which is basically for the parents. Under the threat of COVID-19, e-learning, that is online learning, has moved quickly and efficiently to fill the gap created by suspended classroom learning. ये आप सबको पता है कि 14 मार्च के आसपास जब मुंबई में लॉकडाउन शुरू हुआ था, क्लासरूम लर्निंग सस्पेंड होना चालू हुआ था, तभी क्लासरूम लर्निंग के लिए ऑल्टरनेटिव ई लर्निंग, दैट इज ऑनलाइन लर्निंग का नाम बहुत ऊपर उठा था. अभी ऑनलाइन लर्निंग होता क्या है, वो टाइम पे हम में से उसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं था. बट यस, कि ऑनलाइन लर्निंग चालू करना पड़ेगा, ये एक हवा उठी थी मार्केट में. As the affected regions across Maharashtra, especially Mumbai, started locking themselves down to counter the threat of coronavirus, students were sent home without a clear-cut plan to continue their learning. जैसे जैसे महाराष्ट्र के हर एक डिस्ट्रिक्ट्स अपने आप को लॉकडाउन करना चालू हो गए थे, 2 महीना 3 महीना, तो क्या हो गया था, इनफैक्ट अभी तीसरा महीना चालू हो गया है. क्या हो गया कि देयर वाज नो प्रॉपर न्यूज as in when the schools, colleges and coaching institute will be allowed to reopen the activities. यही assume किया गया था. The assumption was that this would pass soon enough and students could do with some downtime. मतलब बच्चों को एक छोटी सी छुट्टी मिल जाएगी and छुट्टी के बाद उनका वापस से पढ़ाई चालू हो जाएगा. But as the virus has progressed from one region to another, it has become more and more apparent that this lockdown is not going away anytime soon. And even if it does, आपको पता है restrictions को धीरे धीरे कम करना चालू कर दिया है in a phase wise manner. Phase 1, Phase 2, Phase 3 and सबसे लास्ट फेज में schools, colleges and coaching institute को reopen करने को बोला गया है. And सबसे लास्ट फेज मतलब somewhere around July, August. So, and even if it does, restrictions on educational institutes would take some time. With this realization, schools, universities and coaching centers are scrambling. बहुत कोशिश कर रहे हैं क्या करने की, बच्चों को ई लर्निंग प्रोवाइड करने की. बराबर. Of course, not all of them are equipped to do this, but they are trying to learn fast with the help of already available e-learning platforms and tools like RoboMate Plus. बहुत सारे स्कूल्स ने क्या किया है, बहुत सारे स्कूल्स ने अपने ऑनलाइन सेशन चालू कर दिए हैं. उन्होंने अपने ऑनलाइन सेशन में यूट्यूब के लिंक्स फॉरवर्ड किए हैं. या कोई कोई क्या कर रहा है, कोई कोई टीचर्स घर पे ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफलाइन मोड में एंड वो वीडियोस को बच्चों को व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर रहे हैं. बराबर. तो हर कोई कोशिश कर रहा है अपनी ओर से बच्चों तक ऑनलाइन वे के थ्रू एजुकेशन पहुंचाया जाए. एंड हमने भी शुरुआत की थी विद द हेल्प ऑफ रोबोमेट. लेकिन फिर भी पेरेंट्स को इतना आइडिया नहीं था कि ऑनलाइन सेशन होता क्या है. सो पेरेंट्स, let's basically first understand what exactly is the meaning of an online session. Online session refers to the lectures which the child can view sitting at the comfort of his or her home with the help of internet. मतलब अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो बच्चे लेक्चर भी नहीं देख पाएगा. अब ये ऑनलाइन सेशन को ना हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. In simple terms, it can be stated that online lectures are a combination of recorded lectures. Recorded lectures बोला तो अपना रोबोमेट, जिसके अंदर लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हुए हैं और बच्चा अपने कंफर्ट के हिसाब से कभी भी उसे देख सकता है. सेकंड इज समटाइम्स द टीचर सेंड देम यूट्यूब इंफॉर्मेटिव वीडियोस, मतलब यूट्यूब के लिंक सेंड करेंगे जो बच्चा घर पे अगेन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकता है. एंड थर्ड इज अ प्री डिसाइडेड टाइमिंग के हिसाब से लाइव सेशंस जो जूम ऐप के थ्रू हो रहा है. सो ऑल दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन सेशन.
At Mahesh Tutorials, we had already started with providing online session from 6th of April 2020 with the help of our recorded lectures, that is RoboMate Plus. इनफैक्ट हमने RoboMate ये सोच के नहीं बनाया था कि हम लोग को कोविड को सामना करना पड़ेगा, बराबर. बट ट्रस्ट मी, at a time of this COVID situation, at a time of this lockdown quarantine, ये RoboMate अपने लिए सबसे बड़ा बून बन गया है. बिकॉज हम लोग चाहे जितनी बार अपने पेस के हिसाब से, अपने स्पीड के हिसाब से जितनी बार चाहे उतनी बार RoboMate देख सकते हैं. तो हमने शुरुआत की थी 6 अप्रैल को by giving the student schedule of RoboMate Plus. Day wise module viewing activities were given. अभी day wise module viewing activities मतलब क्या? अभी एक लेसन जो होता है ना, वो कम से कम रिकॉर्ड करते वक्त ना 2 से 3 घंटे का होता है. अभी 2 से 3 घंटा एक साथ रिकॉर्डिंग देखना पॉसिबल नहीं है. तो हमने क्या किया है, हमने उस रिकॉर्डिंग को 5 to 7 मिनट्स के स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है. तो बच्चे को हर एक मॉड्यूल जो होता है ना, वो 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं होता. तो बच्चे को ऐसे दिन में हर एक सब्जेक्ट के 4 या 5 मॉड्यूल का टाइम टेबल बना के दिया था. एक सब्जेक्ट का 4-5, सेकंड सब्जेक्ट का 4-5, ऐसा करते करते दिन में 2 और 3 सब्जेक्ट्स का मॉड्यूल्स दिया था. So day wise module weaving activities were given along with learning and written activities, that is assignments. Once the children got settled with RoboMate, एक महीना बच्चे ने बहुत दिलचस्पी से, बहुत मेहनत से RoboMate का एक्टिविटी किया, और ऑब्वियसली बोर्डम आने चालू हो गया. तो हमने क्या किया, gradually we introduced the live sessions to the Zoom app. Initially बच्चों को Zoom app का फील देने के लिए we conducted 1 lecture per day, from where we have now moved on to 2 lectures per day. But not to forget, simultaneously we have also given them RoboMate activities also. मतलब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, अगर 2 से 4 बच्चे का जूम सेशन होता है, तो 2 से 4 के बाद बच्चे को फॉर एग्जाम्पल एक लेक्चर रहेगा 2 to 3 इंग्लिश का एंड 3 to 4 हिस्ट्री का. तो 2 to 4 वो इंग्लिश और हिस्ट्री कर रहा है. तो 4 o'clock के बाद RoboMate में बच्चे को अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे चैप्टर्स के वीविंग एक्टिविटीज दिए थे along with the assignments. So the whole understanding on your side, मैंने से your side मतलब पेरेंट के साइड पे, कि आप पोर्शन कभी कंप्लीट करोगे, when will you be able to complete the syllabus, is 2 hours of online session sufficient? काफी है क्या सर 2 घंटा ऑनलाइन सेशन? मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ऑनलाइन सेशन 2 घंटे का नहीं है. ऑनलाइन सेशन कम से कम 4 से 5 घंटे का है, अगर आप जो मैंने बोला वो समझोगे तो. तो ये सब बात शंका जो आप में आती है ना, पोर्शन कंप्लीट होगा क्या, इज 2 hours sufficient? All this question should be put to rest because we are well in track with the syllabus of the students. In fact, because of RoboMate and Zoom, we have covered at least 35% of the child's SSC syllabus. So what we have done is, we have also planned weekly tests for the students so that students are able to understand their mistakes and corrective actions can be taken. Also, a very important note, in this test, अभी हमने टेस्ट चालू किया, पहले RoboMate दिया था, RoboMate के बाद हमने Zoom चालू किया. Zoom के बाद बच्चे ने RoboMate में देखा हुआ चीज भूल ना जाए, इसलिए हमने टेस्ट चालू किया. अभी टेस्ट के बाद पेरेंट्स एक्सपेक्ट करेंगे बच्चे को, आप पेपर कैसे चेक करोगे, मार्क्स क्या मिलेगा? ऑब्वियसली पेपर ऑनलाइन चेक करना मतलब मंगवा के चेक करना बहुत डिफिकल्ट है, बराबर. तो ऐसे में हम क्या करने वाले हैं, हम इसका मॉडल आंसर आपको देने वाले हैं, तो ताकि मॉडल आंसर के थ्रू बच्चा खुद और आप उसके साथ बैठ के पेपर्स को चेक कर सके. अभी ये पेपर्स लेने का इंटेंशन ये नहीं है कि बच्चे को मार्क्स कितना मिल रहा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. पेपर चेकिंग से आपको ये अनुमान लगाना है, आपको ये अंदाजा लगाना है कि बच्चे को वो चैप्टर्स कितनी गहराई तक, कितने अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ है. तो हम लोग ये पेपर्स अंडरस्टैंडिंग के लिए चेक कर रहे हैं, ना कि मार्क्स के लिए. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट इन दिस टेस्ट, स्कोरिंग ऑफ मार्क्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट व्हाट मैटर्स इज देयर अंडरस्टैंडिंग. Hence, parents and students need to evaluate their paper to judge the understanding. Marks will be secondary. Marks secondary है, understanding कितना हुआ है वो primary है. Is that clear with all the parents? So, a general awareness for all the parents. Please accept that this is going to be an unusual year. जो आप लोग अभी भी समझ नहीं रहे हो, आप ये अभी भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हो जो लास्ट ईयर तक होता था वो अभी भी हो, पॉसिबल नहीं है. लास्ट ईयर तक बच्चा क्लास में आता था 6 घंटे के लिए, अभी 6 घंटा एट अ स्ट्रेच बच्चा लाइव लेक्चर देख नहीं पाता है, आंखों में स्ट्रेन पड़ेगा.
So there are many restrictions, there are many drawbacks of even online sessions. If you expect what happened in all the previous years should have happened this year too, then I'm sorry to say it is not possible because of several restrictions and several health hazards of too much of exposure to online content. More of homeschooling or home tutoring with the help of online content is the need of the hour. We agree with this कि क्योंकि बच्चा घर पे है तो होम स्कूलिंग होम ट्यूटरिंग विद हेल्प ऑफ ऑनलाइन कंटेंट इज द नीड ऑफ द आवर. When it is said homeschooling or home tutoring, it means parental involvement has to increase to ensure students are actually giving the Rome plus. मतलब यहाँ पर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरा बच्चा सुनता ही नहीं है, आप ही बोलो, आप ही करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप मुझे बोलोगे, आप उसको बोलो करने के लिए, मैं एक फोन करके बोलूंगा उसे करने के लिए, लेकिन वो एक्चुअल में कर रहा है कि नहीं ये आप ही को इंश्योर करना है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट हैज टू इंक्रीज टू एंश्योर स्टूडेंट्स आर एक्चुअली गिविंग द रोमेट प्लस, लर्निंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम सॉफ्ट कॉपी, solving the relevant assignments and attending the live sessions with complete dedication. Please understand that we want to teach everything to the students in front of us in the classroom, but it all depends upon when the lockdown is lifted by the government. In fact, अगर 30 जून को लिफ्ट करेंगे लॉकडाउन एंड 1 जुलाई से बोलेंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को पढ़ाना अलाउ करेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 जुलाई से लेके हम लोग पोजीशन में हैं. बच्चे का पूरा पोर्शन जो भी उसने रोब में देखा है एंड जूम पे कवर किया ना, हम वापस क्लास में कवर कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर अगस्त से भी परमिशन मिला ना तो भी हम कर सकते हैं. ऑब्वियसली हमने आपको सेमी प्रीलिम्स वगैरह कमिट किया था, वो हमको थोड़ा निकालना पड़ेगा पोर्शन कंप्लीट करने के लिए, दैट विल मैनेज. लेकिन it again I'm saying it all depends upon when the lockdown will be lifted. लॉकडाउन जितना लेट लिफ्ट होगा उतना हमको ऑनलाइन का सहारा लेना ही पड़ेगा. One more thing is very challenging for all of us. We all are aware of the ongoing situation in our country and across the world. Our decision to impose a lockdown on time was a very well decision taken by our government, keeping in mind the medical preparedness. In fact, this lockdown was praised by all the world leaders. However, analyzing the financial impact of decision, we realize how challenging times have been and can be for some time henceforth. हम पिछले 2 महीने से घर पे ही है, थोड़ा बहुत सैलरी का इश्यू हो रहा है. We very well understand with the situation. हमारे ओपिनियन में once the money stops changing hands, it hurts the entire chain of individuals, including जो पैसा होल्ड कर रहा है, including the one holding to it. Stopping the flow of money, जब आप पैसा स्टॉप करते हो, eventually causes a drop in eagerness to support. समझो जब आप ECS स्टॉप करने की रिक्वेस्ट करते हो या फिर ECS स्टॉप करते हो या फिर आप चेक बाउंस करते हो तो क्या होता है, आपको उतना सपोर्ट करने का इंटरेस्ट हमारी तरफ से भी उतना ही कम होता है, which in turn causes discomfort and desperation, finally leading to a full circle of inevitable loss in quality. दिमाग में वो रहता है, अरे इसने पैसा दिया नहीं है, उसका ECS बाउंस हुआ है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो क्या होता है, ओवरऑल टीचिंग क्वालिटी कम होती है. Hence, we hereby request all the parents and stakeholders to continue paying the EMIs regularly and also clear the previous bounce amount, if any, and ensure uninterrupted flow of services. Kids, their academics and their well-being are our paramount concern. हमारा सबसे पहला कंसर्न यही है, बच्चे उनके academics मिस होना नहीं चाहिए. लेकिन साथ ही में we are also committed to support our team members and family. We will need your trust and cooperation to walk this tight rope of quality and consideration together. आपके सपोर्ट के बिना हम बच्चों को वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते. Hence, it's a genuine and a humble request to all the parents not to stop the ECS, clear the previous bounce amount if any, to enjoy the uninterrupted services. So this was basically a part which was for the parents. I'm not saying parents will move out now. I want parents to continue further for the next session because आपका support ये session में बहुत ही important है. We are going on towards the next session, the next part of the session, which is called as the self-analysis. Now, what exactly is the meaning of self-analysis? आप देख सकते हो यहाँ पर एक लड़का या फिर एक one person is trying to rub the mirror in front of him. वो mirror rub इसलिए कर रहा है because mirror rub करने के पहले उसको अपना चेहरा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है.
लेकिन जब वो मिरर रब करता है, he can see clear what he want to see. तो सेल्फ एनालिसिस मतलब क्या? खुद को अंडरस्टैंड करना, अपने सामने जो धूल जमी हुई ना मिरर पे, वो साफ करना। हम अगर बच्चों को पूछेंगे, बच्चों आपके मम्मी कैसे हैं, बच्चा मम्मी के बारे में बहुत कुछ बोलेगा। पापा कैसे है, बहुत कुछ बोलेगा। आंटी कैसी है, बहुत कुछ बोलेगा। अंकल कैसे है, बहुत कुछ बोलेगा। दादी कैसी है, बहुत कुछ बोलेगा। दादा कैसे है, बहुत कुछ बोलेगा। टीचर कैसे है, बहुत कुछ बोलेगा। आप कैसे हो, वो नहीं बोल पाएगा। वो बहुत अच्छा होता है, जो एक्चुअल में सही नहीं है। तो खुद को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब खुद को अंडरस्टैंड करेंगे ना, तब हम लोग अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ, अपना टारगेट की तरफ हम लोग इजीली पहुंच पाएंगे। सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज सेल्फ एनालिसिस। अब इस सेल्फ एनालिसिस में बेसिकली इट्स अ टारगेट सेटिंग सेशन, अ मोटिवेशनल सेशन। इस सेशन में सबसे पहले बच्चों का ड्रीम नेम सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो बच्चा ड्रीम में चांद और तारों को टच करने की कोशिश कर रहा है, और वो ड्रीम में टच कर भी लेता है, बराबर। टच कर लेना मतलब क्या? वो अपने गोल की तरफ बढ़ रहा है। आई वुड लाइक टू क्लियर वन मिसअंडरस्टैंडिंग। हमको लगता है ड्रीम नेम मतलब टू बिकम दीपिका पादुकोण, टू बिकम विराट कोहली, टू बिकम people like Dr. APJ Kalam, Abdul Kalam Azad, to become Sachin Tendulkar, बराबर ना? Basically, all these persons whose name I took right now, they are not your dream name, they are your idol. आपको उनके जैसे बनना है, ओके? उन्होंने जो सफलता हासिल की है, what success they have achieved, even you want to achieve in a same possible manner. But हो सकता है you don't want to become like Virat Kohli, you want to be a doctor. हो सकता है कि you want to be a cricketer, हो सकता है you want to be a CA. सर, तो ड्रीम नेम का मतलब क्या होता है सर? ड्रीम नेम का मतलब होता है हम अपने नाम के आगे क्या प्रीफिक्स या सफिक्स लगाना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रवीण शेनॉय एज ए स्टूडेंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो माय ड्रीम नेम वुड बी डॉक्टर प्रवीण शेनॉय। यू गेटिंग मी? आई वांट टू बी अ सीए, सीए प्रवीण शेनॉय। आई वांट टू बी अ क्रिकेटर, क्रिकेटर प्रवीण शेनॉय। आई वांट टू बी अ डीजे, डीजे प्रवीण शेनॉय। Am I clear? हर किसी का ड्रीम अलग अलग होता है। लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर दिस ड्रीम्स। दिस ड्रीम्स जो भी बोला मैंने, डीजे बनना, क्रिकेटर बनना, डॉक्टर बनना, ओके, ऑल दिस राइट नाउ एट आवर एज आर लाइक द स्टार्स एंड द मून, जिसे अचीव करना हम सबका एक ड्रीम है। इसीलिए वो ड्रीम नेम सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब ड्रीम स्ट्रांग रहेगा ना, आप उतनी ही मेहनत से उसकी तरफ पहुंचने की कोशिश करोगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो आफ्टर ड्रीम नेम जो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका लीप लेना, जंप लेना फ्रॉम द स्मॉल पॉन्ड टू अ ह्यूज पॉन्ड। आपका भी साथ यही हो रहा है ना? ये आपका 9th स्टैंडर्ड था, स्कूल एग्जाम्स, 200-300 बच्चों में आप एग्जाम लिखते थे। अभी 10 लाख बच्चों के बीच आप एग्जाम लिखने वाले हो। 10 लाख में से स्टेट बोर्ड की बात किया, सीबीएसई आईसीएसई गिनूंगा तो अलग। तो इतनों के बीच हम लोग एग्जाम लिखने वाले हैं। अगर हम लोग 200-300 से लाखों के ऊपर आएंगे, तो अपनी पहचान क्या हो गई? मिट गई इसके अंदर। But everybody wants to make an impression amongst those lakhs of kids, बराबर ना? But to make an impression, what is important? Not to compare yourself with somebody else, comparing yourself with your past. And hence, your grade 9th performance is very important. Am I clear? अभी ये बोल के ये मत बोलो सर 9th का परफॉर्मेंस की बात क्यों कर रहे हो सर, क्यों गड़े मुर्दे उकाड़ रहे हो। 9th का परफॉर्मेंस निकालना इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको आइडिया देगा कि आपको 10th में कितना हद तक स्कोर करना है। मेरा अगला सवाल है, हाउ मच डू आई विश टू स्कोर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन? विश मतलब क्या होता है सर? विश मतलब बिल्डिंग में एक आंटी है, आप रास्ते पे चल रहे हो, वो आंटी आपको पूछती है, क्या प्रवीण 10th में आ गया है ना, कितना स्कोर करना है बोर्ड में? तो मैं बोलूंगा आंटी मुझे 95% स्कोर करना है। तो वो परसेंटेज जो किसी भी अंकल को आंटी को बोलते वक्त हमको शर्म नहीं आती, दैट इज कॉल्ड एज माई विश टू स्कोर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। एम आई क्लियर? अभी आपका विश तो बहुत कुछ है। आप घर पे आओगे, आप बैठोगे, आप खुद को एनालाइज करोगे, एंड आप पाओगे कि आपके अंदर पोटेंशियल है 85% का, पोटेंशियल है 85 का, आपने विश रखा है 95 का। टेल मी, विल दैट वर्क? ऑब्वियसली द आंसर इज नो, इट वोंट वर्क। So what I suggest is your wish and your potential should match, because when your wish and your potential will match na, you will be a step closer towards achieving your target.
एम आई क्लियर? या तो अपना पोटेंशियल को इंक्रीज करो, या तो विश ऐसा बोलो कि जो तुम लोग हासिल कर पाओ। किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद को अचीव करने के लिए वो रखो। एम आई क्लियर? सिंपल अंडरस्टैंडिंग में बड़े बुजुर्गों ने बोला ही होगा, 100 का एम रखोगे तब जाके 98 मिलेगा। सुना है ना? सच्ची कहा है। बिकॉज व्हेन यू एम फॉर 100% you will get 98%. Similarly, when you aim for 98%, you will get somewhere around 94%. You getting me? Try to always aim for something higher in life. You will try to reach somewhere closer to it. Am I very clear with this part? Okay. अभी बच्चों को अपने विश की तरफ बढ़ने के लिए, अपने पोटेंशियल की तरफ बढ़ने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये सब अचीव करने के लिए आपके स्कूल के एग्जाम्स में, आपके क्लासेस के एग्जाम में आप कितना परसेंट स्कोर कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। बराबर ना? इसीलिए टारगेट सेट करना स्कूल एग्जाम्स के लिए, क्लासेस के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेंस आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to set a target for yourself for the first test and set a target for yourself for the second test. Target for first test and target for second test. Why is setting a target for first test and second test very important? I'll come to it. Now students, you might have given your school exams. स्कूल एग्जाम से आने के बाद क्या बोलते हो? मम्मी पूछती है, डैडी पूछते हैं एग्जाम कैसा गया? हम क्या बोलते हैं? मम्मी एकदम सुपर्ब गया, मस्त गया, ओके फुल मार्क्स मिलेगा, अच्छा गया। मम्मी है ना, मम्मी मनी मन बोलती है, अच्छा बेटा ओपन हाउस में देख लेते हैं कितना स्कोर करने वाला है। द डे ऑफ ओपन हाउस कम्स, व्हेन द ओपन हाउस कम्स व्हाट हैपेंस इज वही घिसा पिटी कहानी, यू हैव स्कोर्ड लेस। मम्मी पूछती है तूने तो बोला था पेपर मस्त गया था, मार्क्स कहाँ गए? तो हम क्या बोलते हैं? मम्मी टीचर ने पेपर बराबर करेक्ट नहीं किया, मैंने तो इतना बड़ा आंसर लिखा था, पूरा कट करके चौकड़ी दे दिया है। बराबर ना? ये अपना आंसर होता है। कभी भी हम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। कभी भी हम लोग ये नहीं बोलते कि मम्मी मैंने पढ़ाई कम कर दिया था, पेपर में क्वेश्चन छूट गए थे, मेरी गलती है, मैंने क्वेश्चन बराबर समझा नहीं था। बराबर ना? हमारा ईगो हर्ट होता है। बराबर ना? एंड फिर हम लोग क्या करते हैं? मम्मी को पापा को इम्प्रेस करने के लिए या फिर झूठ बोलने के लिए हम उनको ये बोलते हैं, मम्मी पापा अगले एग्जाम में मैं अच्छा स्कोर करूंगा। लेट्स अज्यूम ये एग्जाम में आपने 50% स्कोर किया है, आप ये बोलोगे अगले एग्जाम में पापा पापा 80% कंफर्म। पापा मनी मन बोलता है 80% छोड़ 60 भी लाए तो भी बहुत है, लेकिन आपके लिए वो मान लेते हैं कि आपने 80 बोला है। एम आई क्लियर? ओके? तो पापा बोलते हैं मनी मन में 80 तो दूर की बात है, 60 पे स्कोर किया तो बहुत है, लेकिन वो आपको एक मौका देते हैं ये बोल के कि लेट्स सी हाउ मच माय चाइल्ड इज स्कोरिंग। बराबर? अभी आपने वो 80 कैसे बोला है? 80 ऐसे ही हवे में तुक्का मार के बोला है, एक्चुअली में वो रियलिटी नहीं है। तो सर अगर मुझे टारगेट सेट करना है, हाउ टू सेट अ टारगेट फॉर माई सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल टेल यू हाउ टू सेट अ टारगेट फॉर योर सेल्फ। टारगेट सेट करते वक्त ना सबसे पहले आप लोगों को अपना 9th का परफॉर्मेंस जानना इंपॉर्टेंट है। लेट्स अज्यूम इन 9th स्टैंडर्ड यू हैव स्कोर्ड 50%, बट इन 10th स्टैंडर्ड यू विश टू स्कोर 90%। ऑब्वियसली 9th में 50, 10th में 90, यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ 40%। अभी 40% इज नॉट अ वेरी स्मॉल नंबर, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। बराबर ना? हर कोई पे शक करेगा 50 का 90 कैसे पॉसिबल है, लेकिन अगर आप बैठोगे एनालाइज करोगे तो 40% का आपको जंप लेने के लिए आपके पास कम से कम 10 एग्जाम्स है, 10। तो 40% के डिफरेंस को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो 40 डिवाइड बाय 10 यू विल गेट 4%। आपको हर एक एग्जाम में 4% का ही लीप लेना है। मतलब 50 का 54, 54 का 58, 58 का 62, 68 का 66 एंड सो ऑन। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। इमेजिन करो अर्ली सिचुएशन, आपने पापा को बोला है 80%, आप अचीव करते हो 55%। योर पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विद यू। रीजन? आपने उनको प्रॉमिस किया था 80% का, जब आपको मिला है ओनली 55%। दे आर नॉट हैप्पी। लेकिन 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 मनी मन आपको पता है आपको पहले 50 मिला था, अभी आपको 55 मिला है, आपने इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन आप भी खुश नहीं हो क्योंकि आपने अपने आप को झूठा खुशी दिलाने के लिए 80% का टारगेट सेट किया था। बराबर? लेकिन इमेजिन करो यू आर सेटिंग अ टारगेट विच इज रियलिस्टिक। आपने ये एग्जाम में 54% का टारगेट सेट किया है एंड आपको मिला है 55%। ऑब्वियसली योर पेरेंट्स एंड यू विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट। रीजन? यू हैव सेट अ टारगेट एंड यू हैव अचीव्ड द सेम। तो आपको अगला टारगेट अचीव करने के लिए ना बोलते ना
यू विल बी इन अ पोजिशन, रगों में खून दौड़ेगा अचीव करने के लिए. रीजन, आपने फर्स्ट टारगेट अचीव कर दिया. इज दैट क्लियर? एवरी milestone matters. So set a target which is realistic and move ahead. I hope it's very clear with everybody. Good. The question is, should I study in lockdown? Why? How many hours should I study by myself? Am I clear? Obviously, the answer to the first question, should I study in lockdown? The answer is a big, 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 big. You can see my mundi. Yes. It's a yes. I should study during lockdown. Sir, why are you saying to study during lockdown? The entire world is on PUBG. The entire world is enjoying TikTok videos. The entire world is watching TikTok versus YouTube video. बराबर? But मैं हूँ, I'm watching 6 to 8 hours of online session. Sir, क्यों sir? मेरे साथ ये क्यों नाइंसाफी हो रही है? I will prove the point to you. Right now, the lockdown phase is going on. Am I right? 24 hours का 24 hours आपके पास है. वो 24 आवर्स में से आपने 10 घंटे की नींद भी ले ली तो भी 14 आवर्स आपके पास बचता है. वो 14 आवर्स में से 6 से 8 घंटे का ऑनलाइन सेशन निकालो. लेट्स अज्यूम 8 घंटे का. 14 में से 8 निकाल दिया, 6 घंटा बच गया. बराबर? वो 6 घंटे में से मैं बोल रहा हूँ स्टडी फॉर 3 आवर्स अ डे. फिर भी 3 घंटा बचता है टाइम पास करने के लिए. एंड अभी का टाइम ये टाइम है जहाँ पे एवरी डे इज अ हॉलीडे. बराबर ना? तो टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत है आपके पास. ऐसा नहीं है कि नहीं है. Where there is a will, there is a way. You are having time with you. So stop giving excuses कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है. लॉकडाउन में भी मेरे पास टाइम नहीं है. अगर ये बोलोगे ना तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है. ओके, लॉकडाउन का फेज विल पास आउट. ओके, निकल जाएगा लॉकडाउन. एंड तब याद आएगा लॉकडाउन was the only time where I had time, because rest of the time I will not get time. सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? लॉकडाउन इज द ओनली टाइम वेयर आई हैव टाइम, रेस्ट ऑफ द टाइम आई विल नॉट गेट टाइम. इज इट ट्रू कि मुझे लॉकडाउन के बाद टाइम नहीं मिलने वाला है? इट इज अ फैक्ट. स्कूल्स विल रीओपन, क्लासेस विल रीओपन. हर कोई घाई में रहेगा क्वेश्चन कंप्लीट करने का. स्कूल विल बी कॉलिंग यू फॉर 6 to 7 hours a day. बराबर? फ्रॉम देयर यू विल बी कमिंग टू क्लासेस फॉर 3 to 4 hours a day. तुम ही गिनो ना. 7 hours ऑफ स्कूल, 4 hours ऑफ क्लासेस, 11 hours. 7 घंटे की नींद, 11 + 7 18 hours. 2 घंटे का ट्रैवलिंग स्कूल और क्लासेस का, 20 hours. बचा 4 घंटा. उसमें 2 से 2.5 घंटे का स्कूल का होमवर्क असाइनमेंट करोगे तो पढ़ाई के लिए वक्त कहाँ मिलेगा? एंड 10th स्टैंडर्ड में परसेंट स्कोर करने के लिए खुद से पढ़ाई करना, सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बराबर ना? इसलिए मैंने बोला लॉकडाउन इज द ओनली टाइम वेयर यू हैव टाइम, बिकॉज रेस्ट ऑफ द टाइम यू विल नॉट गेट टाइम. इज दैट क्लियर? Because once the regulars will start, once your schools and classes will start, this is your routine. Look at the routine. Your routine is this: school, classes, school homework, school assignments, class assignments, school test, classes test. Everything is making this of you. And then you will sympathize yourself. मेरे साथ ही ये हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपके साथ ये होने वाला है, तो काय को sympathize करना? अभी से प्रिपेयर रहो ना. In biology you have learned a lesson, disaster management, right? There is something called as preparedness. I am telling you, be prepared right now. सिर्फ बोलने के लिए मत बोलो. प्रिपेयर्डनेस रहो, प्रिपेयर करके रखो अभी. बिकॉज अभी जब प्रिपेयर रहोगे ना तब जाके आप फ्यूचर में ये सिचुएशन को अवॉइड कर पाओगे. इज दैट क्लियर? पक्का? So I don't want this situation to arise with you people, and hence I'm telling you, please set a target for yourself for the first test and a target for yourself for the second test, so that once you achieve these targets, you will be self-motivated to give your best in each of the future exams. Clear? Obviously, ये टारगेट सेट करते वक्त ना कुछ चीजें दिमाग में रखनी है. Like what? Like this image. You can see the image in front of you. Yes, the image is of a child who wants to grow elder. बचपन में ही बड़ा होना है. और ये सवाल हमेशा घर पे उठता है, क्या हम बच्चे हैं कि क्या हम बड़े हैं? और सवाल उठाने वाले, सवाल पैदा करने वाले कौन है? पेरेंट्स ही है. सुबह सुबह मम्मी झगड़ा करती है आपके साथ, बोलती है ज्यादा बोलने का नहीं, तुम बच्चे हो. और शाम को पापा बोलते हैं ज्यादा बोलने का नहीं. नहीं, पापा ये बोलते हैं तू अभी इतना बोल रहा है, तू बड़ा हो गया. मम्मी बोलती है छोटा है, पापा बोलते बड़ा हो गया, तो तुम
मजेदार में हो, तुम कंफ्यूज्ड हो, am I a kid or am I a matured person? You can't be a matured kid. You can either be a kid or you can be a matured person. Am I clear? And मेरे हिसाब से तुम सब kid ही हो, because you don't know what is right for yourself and what is wrong for yourself. You don't know what is good and what is bad. You flow with the flow. एंड तुम लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग देना कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है. You require parental support, parental interference for the same. Because without this people, without this lady and this gentleman, your life is incomplete. And obviously, each one of you expects something from them in your academics. कोई बोलता होगा, sir, I want my mummy to take my take up. कोई ये भी बोलता होगा, sir, I don't want my mummy to take my take up because I'll forget the answers. Sir, if my dad sits with me for Sundays with maths and science, I feel motivated. Or let him sit beside me, I will practice on my own, but I want someone to supervise me. It's okay. अभी मन में जो है वो उन तक पहुंच तो नहीं पाएगा, वो तभी पहुंच पाएगा जब आप बोलोगे. तो communicate to them. What are you expecting from them in your academics? And trust me, if you do this, na, your life will be at ease. Am I clear? पक्का? Okay. And last में, अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है, सबसे पहले अपने लाइफ में से डिस्ट्रैक्शंस और वीकनेसेस को निकालो. डिस्ट्रैक्शन मतलब पबजी, मतलब सोशल मीडिया, मतलब ऐसा सब्जेक्ट जो तुम लोग मेहनत करते हो लेकिन मार्क्स आता नहीं है, बराबर ना. डिफरेंट स्टूडेंट्स, डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस, बराबर ना. तुम क्या करना है, हमको ये डिस्ट्रैक्शंस को अपने लाइफ में से निकालना है. अभी निकालना मतलब ओवरनाइट निकालना पॉसिबल नहीं है. प्रवीण सर ने बोल दिया डिस्ट्रैक्शन निकाल दो, तो हमने क्या किया, मोबाइल को, अपने पास एक पर्सनल मोबाइल था जो मम्मी ने दिया था अपने को, हमने क्या किया, प्रवीण सर ने बोला है रिमूव डिस्ट्रैक्शन, तो वी वेंट एंड वी गेव द मोबाइल टू अवर मॉम एंड डैड, ये बोल के कि फॉर 10 स्टैंडर्ड आई डोंट वांट मोबाइल फोन. 2 दिन बाद क्या करेंगे, मम्मी प्लीज आई वांट टू यूज द मोबाइल फोन एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स. वो 10 मिनट्स का हाफ एन आवर का 1 आवर होता है. आई डोंट वांट दैट. व्हाट आई वांट इज जनवरी फरवरी में आप लोग सोशल मीडिया से कंप्लीटली बाहर आने चाहिए. अगर जनवरी फरवरी में आपको सोशल मीडिया से बाहर आना है तो उसका शुरुआत आपको अभी से करना है. लेट्स अज्यूम यू हैव अ हैबिट ऑफ बीइंग ऑन सोशल मीडिया फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स अ डे. तो आप क्या करोगे, आप कल से टाइम कम करोगे. यू विल बी ऑन सोशल मीडिया फॉर 1 आवर 45 मिनट्स. कोशिश करो 1 महीने बाद जब आदत पड़ जाएगी 1.5 आवर करो, फिर 1 आवर 15 मिनट्स करो, फिर 1 आवर करो. ऐसा करते 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 ग्रेजुअली जब जनवरी आ जाएगा ना, आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहोगे मोबाइल को गिव अप करने की. अभी बोलोगे तो पॉसिबल नहीं है. फ्यूचर में ग्रेजुअली कंटिन्यूअसली पॉसिबल है. हमें क्लियर? तो जो भी अपना डिस्ट्रैक्शंस है, जो भी अपना वीकनेसेस है, सर मैं बहुत मैथ्स प्रैक्टिस करता हूँ सर लेकिन फिर भी सक्सेस मिलता नहीं है मुझे, तो क्या करने का, मैथ्स को और प्रैक्टिस करने का. मैथ्स में मास्टरी करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिसिंग मोर ऑफ इट. एंड द आइडियल टाइम टू प्रैक्टिस मैथमेटिक्स इज नाइट टाइम. खाना खाने के बाद जब पेट हैवी होता है ना, यू कांट सिट विद द थियरी सब्जेक्ट लर्निंग क्वेश्चन आंसर्स. एट दैट टाइम प्रैक्टिस मैथ्स. And ideal timing is 9:30 to 10:30 or 10 to 11. Practice compulsory sums in writing. सर मेरा तो एक बार हो गया सर, प्रैक्टिस सेकंड टाइम. सो 2 बार हो गया सर, प्रैक्टिस थर्ड टाइम. इतना प्रैक्टिस करो कि आपको बाय हार्ट हो जाना चाहिए सम्स. एंड पेपर में जब आप लिखोगे तो यू शुड बी सो फ्लुएंट that you're completing the paper well before time. That is called as a mastery, and that is when you will score a perfect 100 on 100 in mathematics. Am I clear? So distractions can be avoided provided you analyze yourself and understand what are your distractions. Similarly, if at all you can point out your distractions, you need to point out your strengths also. You need to point out your motivation also. For example, डैडी ने बोला है 10th में अगर 90 के आप लाओगे ना तो आपको आईफोन दूंगा. तो obviously that iPhone is a motivation. बराबर ना. मम्मी ने बोला है I will give you this, whatever she will give you, obviously it's a motivation. बराबर ना. या फिर बिल्डिंग में एक आधा फ्रेंड होगा जिसने 2 साल पहले एग्जाम दिया होगा 10th का, उसने बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर किया था. ही हैज बिकम योर आइडल. ही कैन बी अ मोटिवेटर. टेक टिप्स फ्रॉम हिम. जिससे भी आपको लगता है कि आपका फायदा होने वाला है, ये पर्सन से बात करके आई विल बी मोटिवेटेड, ये पर्सन से बात करके आई कैन बी स्ट्रेंथन्ड. प्लीज कीप अ कांस्टेंट टच विद दोस पीपल.
your teachers, your parents, okay, your favorite subjects can be your strength and your motivation. I want you to strengthen your strength. तो अल्टीमेटली स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करने का एंड जो भी अपने वीकनेसेस है उसको इवेंचुअली गायब करने का. दैट इज हाउ यू कैन रीच टुवर्ड्स योर टारगेट. एम आई वेरी क्लियर? सो नाउ व्हाट आई रिक्वेस्ट यू ऑल इज, ये जो भी मैंने डिस्कस किया सेल्फ एनालिसिस का, इसका एक पेपर है which I am sending you on WhatsApp. Am I clear? What I want you all to do is, I want you all to sit with your parents, okay, analyze all these questions and fill the answer in the questionnaire. And उसी questionnaire मतलब take a printout, then fill the answers. And उसी के पीछे ना what you will do, और उसी के पीछे छोड़ो या फिर एक नया पेपर लो A4 size, उस पर write, like for example I am Praveen, I will write Praveen's target to score in the boards is in bold 95%. Am I clear? ऐसा दो पेपर में लिखो and लिख के one copy of it display on the study table and second copy of it display on the main door. Main door मतलब घर के बाहर की तरफ नहीं, घर के अंदर की तरफ. I don't want everybody to watch your target. So why on the study table? Because that will instigate you, that will motivate you to always give your best when you study there, sitting over there in the study table. It will always answer your query. सर दूसरे लोग कम पढ़ाई कर रहे हैं, मैं क्यों ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए? This will give you an answer. And second, whenever you feel like wasting your time, whenever you feel like going down to play for 2 hours and you come across the main door, you will see this is your target. So eventually, automatically, वो 2 घंटे का half an hour या 45 minutes ही होगा. Am I clear? Hence, a request to all the students, A4 size paper, Praveen's target in, don't write Praveen over there. Okay, Praveen is me. You will write your name and your target and display it on the study table and main door. And I'm WhatsApping you the questionnaire. Kindly fill it. Am I clear? So that we come to know what exactly are you aiming with yourself. Am I clear? With this, I sign off for the day. Thank you very much. Good luck. I'm there to support you in this entire journey. Please take my guidance. Am I clear? We, when I say we, that I come under the role of parent. आप लोगों के पास parents ना दो है. One is your biological parents and the other is your academic parent. Biological parents are the ones who are there with you, supporting you at home. And I am your academic parent. So when both these parents will come together, na, trust me, the result will be yours. But I want even your support. हम अपनी ओर से आगे आ रहे हैं. अगर आप आगे नहीं आओगे तो ताली नहीं बजेगी. ताली बजना is a sound. Sound is a success. So if we want success, we want both of them to come together. Am I clear? So with this, good luck, all the best. God bless you all. Thank you very much.